Good morning and welcome to first class of electrochemistry, class 12th chemistry English medium. So let's start the chapter electrochemistry. Electrochemistry is the branch of chemistry which deals with relationship between chemical and electrical energy. The production of electricity from spontaneous chemical reaction and use of electrical energy to conduct or to bring out non-spontaneous chemical reactions. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जो केमिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस दोनों के बीच के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। हम देखते हैं इसमें कि जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर हम बहुत सारे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम इसके एरियाज को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो दो ब्रांचेज और दो एरिया हो सकता है इसका। फर्स्ट दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल the device in which chemical energy of redox reaction converted into electrical energy, and as a result of chemical energy from redox reaction, that is in spontaneous chemical reactions occurs, and this chemical energy produce electrical energy. And first electrochemical cell was constructed by L. Galvani and A. Volta. So we can call it as galvanic cell, voltaic cell, as well as redox cell. And the example of redox cell or galvanic cell is Daniell cell when we consider the electron, that is zinc and copper electrode. The cell which is constructed by use of two electrode, that is zinc and copper, that is called Daniell cell. Daniell cell is the example of galvanic cell. तो galvanic cell के एक एग्जाम्पल के रूप में हम Daniell cell ले सकते हैं जिसमें हम जिंक और कॉपर से बने जो इलेक्ट्रोड से जो बने सेल है उसको अगर हम कंसीडर करें तो हम एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वह गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, रेडॉक्स सेल या हम एज ए एग्जाम्पल डेनियल सेल को कंसीडर करें, सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो हम बिना देर किए हुए शुरू करें, हेडिंग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry. The branch of chemistry which deals with relationship between chemical energy and electrical energy.
or we can say the production of electricity, or the production of electricity from spontaneous chemical reactions and use of electricity to bring out various non-spontaneous chemical reaction. Two areas or branches in which we study about electrochemistry. First one is electrochemical cell and second one is electrolytic conduction. So पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे. तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन and use of electricity to bring out various non-spontaneous chemical reaction, that is called electrochemistry relationship. Now we see electrochemical cell or Ganvelic cell, the device in which production of electricity from spontaneous chemical reaction, or the device in which chemical energy of redox reaction converted into electrical energy. So next heading will be electrochemical cell. Electrochemical cell. How can you define it? The device in which chemical energy, the device in which chemical energy converted into electrical energy. What type of chemical energy? As a result of redox reaction. So we can write here chemical energy of redox reaction converted into electrical energy. Of redox reaction converted into electrical energy. Redox reaction, the reaction in which oxidation and reduction both occurs simultaneously, that is the redox reaction. The device in which chemical energy of redox reaction converted into electrical energy, first constructed by L. Galvani and A. Volta.
L galvani and A volta, we can say this electrochemical cell show the electrochemical cell is also known as galvanic cell, voltaic cell और redox cell. So next heading will be galvanic shell, and the example of galvanic shell is Daniell cell. When we consider the electrode, zinc and copper. So next heading, galvanic shell. And the example of galvanic shell, Daniell cell. Daniell cell और ZnCu electrochemical cell. ZnCu electrochemical cell. Now the galvanic shell के हम जब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो एक डायग्राम, दो कंटेनर हम लेंगे. एक कंटेनर जो लेफ़्ट साइड हम रखेंगे, उस लेफ़्ट साइड कंटेनर में हम जिंक इलेक्ट्रोड को डालेंगे और राइट साइड कंटेनर में कॉपर इलेक्ट्रोड को डालेंगे. जो जिंक इलेक्ट्रोड हमने जिस कंटेनर में लिया है उसमें ZnSO4 सॉल्यूशन लेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और कॉपर इलेक्ट्रोड जिसमें लिया गया है उसमें कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लेंगे. और उस दोनों इलेक्ट्रोड को पहले हम जो वायर के सहारे हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे, और जो दोनों कंटेनर में जो सॉल्यूशन लिया गया था उस सॉल्यूशन को आपस में हम इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब, जिसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज के सहारे हम जोड़ देते हैं. तो हम समझेंगे कि आखिर इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है. तो कंस्ट्रक्शन हम यहाँ बना दें, इधर बनाते हैं. एक कंटेनर हमने लिया लेफ्ट साइड, और यहाँ जो सॉल्यूशन लिया ZnSO4, और इस ZnSO4 में हम एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक मेटल. Zinc metal rod that behave as electrode, and here ZnSO4 solution, this represent as electrolyte. And in right chamber CuSO4 solution,
that act as electrolyte and electrode here copper metal rod electrode. And firstly we connect these two electrode with the help of wire through voltmeter. एक्सटर्नल सर्किट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब हम लेंगे और ये सॉल्ट ब्रिज का बिहेव करेगा। यहाँ कॉटन प्लग लगा दिया जाए कि जो इसके अंदर का जो सॉल्यूशन होगा वह कंटेनर में नहीं मिले। और ये हो गया ये वोल्टमीटर एंड दिस इज सॉल्ट ब्रिज। Let us consider KCl सॉल्ट हमने यहाँ लिया है और एगार या जिलेटिन में हम मिक्स करके एक पेस्ट बना करके इसमें हम डाल देते हैं। तो हम दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल शेल। हम एक ट्रिक के माध्यम से इसे याद भी रख सकते हैं। LOAN L for left, O oxidation, A anode, N negative। तो जो लेफ्ट चैम्बर में हमने लिया है, लेफ्ट कंटेनर में, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो इलेक्ट्रोड है वह एनोड का बिहेव करेगा और ये निगेटिव है। थोड़ा स्टेटमेंट इसके बारे में हम लें कि जिंक रॉड इन केस ऑफ डेनियल सेल, जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 इन लेफ्ट कंटेनर। जिंक रॉड इज placed in ZnSO4 solution in left container and copper rod is placed in or immersed in, and while copper rod is immersed in copper sulfate solution in right container। तो बहुत आसान है। जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन इन लेफ्ट कंटेनर वाइल कॉपर रॉड इज इमर्ज्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन राइट कंटेनर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टू मेटल इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड बाय मेटेलिक वायर थ्रू वोल्टमीटर। टू metal electrode are connected by
metallic wire through voltmeter। और तीसरा काम हमने क्या किया कि जो सॉल्ट ब्रिज यहां पर लिया, तो सॉल्ट ब्रिज दोनों के सॉल्यूशन को कनेक्ट किया। तो हम लिख सकते हैं द टू सॉल्यूशन आर ज्वाइन टुगेदर बाय सॉल्ट ब्रिज। द टू solutions are joined together by salt bridge। हमने लेफ्ट साइड लेफ्ट कंटेनर में जिंक इलेक्ट्रोड लिया, राइट कंटेनर में कॉपर इलेक्ट्रोड लिया। जिंक लेफ्ट कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ZnSO4 है, राइट कंटेनर में कॉपर सल्फेट है। लेफ्ट कंटेनर में मेरा ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। ये जो इलेक्ट्रोड है एनोड का बिहेव करेगा वह निगेटिव है, और यह जो इलेक्ट्रोड है कैथोड का बिहेव करेगा पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे कि जो रिएक्शन इसमें हो रहा है, तो जो रिएक्शन होगा, जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में हम देखेंगे कि Zn सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हेयर ऑक्सीडेशन, and for reduction the copper ion produced by this solution accept 2 electron and becomes solid, here aqueous, here reduction occurs। And we see copper gain weight। कॉपर में इसका जो वेट है वह बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? और जबकि हम कॉपर मेटल एज ए कैथोड इलेक्ट्रोड का बिहेव करेगा, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा वह इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब यहाँ एक्सटर्नल सर्किट को हमने कंप्लीट किया वोल्टमीटर को जोड़ करके, और जो सॉल्ट ब्रिज है वो दो सॉल्यूशन जो था उसको कनेक्ट किया, और इस तरह से जो मेरा सर्किट है वह कंप्लीट हो गया। फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, फ्लो ऑफ आयन हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज। हमने जो दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में देखा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर हम दोबारा इसको ओवरऑल रिएक्शन पढ़ेंगे और सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, सेल डायग्राम के फॉर्म में हम किस प्रकार से इसे लिखेंगे। तो हम हेडिंग करेंगे सॉल्ट ब्रिज। मिटा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक उल्टा यू के आकार का ग्लास ट्यूब है। इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। सेमी सॉलिड पेस्ट, एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया जाता है। जो सॉल्ट हम लेते हैं उसमें, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, इसके सॉल्ट को जिलेटिन और एगार एगार में मिक्स करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया जाता है, और उस पेस्ट को इस उल्टे इन्वर्टेड यू ट्यूब में, उसे ग्लास ट्यूब में डाला जाता है, और दो कंटेनर के बीच हम उसे एडजस्ट करते हैं जिससे कि दोनों का जो सॉल्यूशन है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके उसका आयन।
हम इसके फंक्शन की बात करें कि सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज? फर्स्ट फंक्शन दैट इज it complete the circuit and helps in flow of electric current, and the next one is it allow flow of ions and maintain the electrical neutrality. So we can write here, it is inverted U-shaped, it is inverted U-shaped glass tube in which a semi-solid paste of salt such as KCl, KNO3, K2SO4, etc. mixed with gelatin or agar-agar solution, agar-agar mixed with agar-agar and or is filled. It is inverted U-shaped glass tube, a semi-solid paste of salt such as KCl, KNO3, K2SO4, etc. mixed with gelatin and agar-agar is filled. Now the function of salt bridge function. First function, that is circuit is completed and help in flow of electric, and second one is it allows ion to mobilize, it allows flow of ions, very easy to and as a result of oxidation it forms Zn2 plus ion. And while copper ion are dissolved in, while copper 2 plus ion dissolve in copper sulfate solution or dissolve in copper sulfate solution at cathode, accepting electrons and become copper and become deposited at cathode. तो यहाँ हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लेफ्ट कंटेनर होता है तो लेफ्ट कंटेनर में ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के कारण Zn2 प्लस आयन बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है,
और ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर, तो जो राइट कंटेनर था, राइट कंटेनर में जो कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और वह इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण कि हम देखते हैं कि कॉपर जो है, कॉपर वेट गेन करता है और जिंक वेट को लूज करता है। तो जिंक डिजॉल्व्स इन एनोड सॉल्यूशन फॉर्म Zn2+ आयन, while copper ion dissolve at cathode accepting electron and become deposited at cathode। तो इस तरह से हमने अब ओवरऑल सेल रिएक्शन को हम देखेंगे यहां पर फाइनली। तो एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हम देखेंगे कि जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, जिंक इलेक्ट्रोड, और Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉर्म कर रहा है, ये एक्वस हो गया। फिर हम देखेंगे कि कॉपर जो है, कॉपर आयन प्लस ये 2 जो इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ, वह 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एट कैथोड ये कॉपर इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे जो है अपने वेट को लॉस कर रहा है और कॉपर जो है अपने वेट को गेन कर रहा है। ओवरऑल रिएक्शन की हम बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन, ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और हम लिख सकते हैं Zn सॉलिड कॉपर एक्वस और Zn2+ प्लस कॉपर, ये एक्वस हो गया और ये सॉलिड हो। अब हम सेल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे और सेल डायग्राम को समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC इन 1953, IUPAC के रिकमेंडेशन के हिसाब से जो सेल डायग्राम, जो सेल रिएक्शन का दिया गया, वह इस प्रकार दिया गया। हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है, जिस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड को रखा है, तो उस कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों को सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन बीच में दिया गया। और साथ ही हम कैथोड में भी देखेंगे ठीक इसी प्रकार, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा और जो इलेक्ट्रोड होगा, दोनों को सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन, और 2 चैम्बर, एक लेफ्ट और दूसरा राइट, दोनों चैम्बर के बीच सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल लाइन दिया गया। और दोनों के कंसंट्रेशन को हम अंडर स्मॉल ब्रैकेट M या C मोलर कंसंट्रेशन के रूप में हम उसे दर्शा सकते हैं। तो हम लिखेंगे शेल डायग्राम। हेडिंग डायग्राम अंडर रिकमेंडेशन ऑफ IUPAC accordance with IUPAC recommendation in 1953, IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, and right reduction occurs. And this represents salt bridge. तो हमने जो डेनियल सेल लिया था, उसके सेल डायग्राम को हम इस रूप में दिखा सकते हैं कि एनोड के रूप में वहाँ था जिंक, ठीक है, जिंक। फिर हम Zn2+ आयन जो फॉर्म हो गया मेरा एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। फिर हम कैथोडिक इलेक्ट्रोड में Cu2+ ले लिए और जो कैथोड है कॉपर आ गया।
मीन्स यहाँ हो गया सॉलिड, ये है एक्वस, ये है एक्वस, ये है सॉलिड। इस दोनों के बीच हम सिंगल वर्टिकल लाइन देंगे, इस दोनों के बीच सिंगल वर्टिकल लाइन देंगे, और सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल वर्टिकल लाइन देंगे। और अगर दोनों के कंसंट्रेशन को हमको मोलर कंसंट्रेशन को दिखाना है तो अंडर ब्रैकेट C या M दे सकते हैं, और अगर इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखना है तो EMF हम राइट साइड देंगे 1.10 वोल्ट। तो इस तरह से हम सेल डायग्राम, जो डेनियल सेल था मेरा कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड वाला, तो उसको हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, सेल पोटेंशियल। हम इसे मिटा दें। सेल पोटेंशियल, समय है 10 मिनट। Cell potential. How can you define cell potential? The difference between electrode potential of two electrode. हमने दो चैम्बर में, दो कंटेनर के में दो इलेक्ट्रोड जो लिया, दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, that is called cell potential. Cell potential, or we can say electromotive force, electromotive force, EMF. So we can write the definition of cell potential: the difference between इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड। The differences between the electrode potential of two electrode. तो हम EMF को लिख सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। और इसे हम E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन भी लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं E राइट माइनस E लेफ्ट। तो इस तरह से हम EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे, और हमने जो डेनियल सेल का जो EMF मेज़र किया हुआ 1.1 वोल्ट किस रूप में आया, इसे समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज पहला क्लास था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आप बने रहें, और रिकॉर्डेड वीडियो में आप फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं, और साथ ही जो अगले क्लास में जुड़ रहे हैं वो पहले जो रिकॉर्डेड वीडियो है उससे देख लें, फिर दूसरे क्लास को अटेंड करें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।